Good morning. Myself, Dr. Suresh Reddy. I am a Vice President of Indian Association of Physiotherapists. I have come from Bangalore, Karnataka. I am working as a senior physiotherapist in ESIC Medical College, Bangalore. I have come here to attend the second National Physiotherapy Conference, that is Physio Manthan, organized by IAP and IAP Women's Cell. We have gathered here witnessing more than 1,200 physiotherapists across this country and as well as abroad. We have got so many participants to attend here. And physiotherapy, as you know, physiotherapy profession has grown tremendously for the past 2 decades. And now Physiotherapy Council has come in the central, that is Allied and Healthcare Council, in which physiotherapy comes under healthcare professionals, where physiotherapists can practice independently. And physiotherapy profession is doing a lot of things to the society where we can prevent a lot of musculoskeletal injuries and we can maintain the fitness, where there is a Fit India program in which physiotherapy play a crucial role in maintaining the fitness of the Indian population, thereby reducing the burden on the healthcare system. This physiotherapy profession is reaching to the villages, community level, where there is no awareness few years back. Now in the community level, everybody knows about the physiotherapy importance. What we do in physiotherapy is we treat a patient without giving any medicines. So our treatment is having no side effects and we give the maximum care to the patient from independent status, for the independent status of the patient. And the doctors add years to the life of the patient, but we give quality of life to those added years. That is the importance of the physiotherapy profession. I request all the young physiotherapists to practice this profession without any unethical things, and physiotherapy has got a lot of importance in sports, in pediatrics, in geriatrics, all the aspects of the healthcare system. This physiotherapy profession has got a lot of importance. So I request youngsters to select the specialty wise physiotherapy and practice, and you should be called as a pediatric physiotherapist or sports physiotherapist, not as a simple physiotherapist. Thank you, and I wish all the delegates all the very best and hope you will enjoy the 2 days program of Physio Manthan. Thank you, the organizers. सर जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर डिस्क की बहुत बड़ी समस्या है, तो फिजियोथेरेपी उससे कितना रिलीफ मिलेगा? Disc problem. Okay. So the disc problem is one of the common problems in the society. These problems comes not because of anything, it is mainly because of the mechanical in nature. Mechanical matlab the way how we sit, the posture what we are adopting, and the work what we do, the occupation. So because of the occupation and because of the posture, you are getting this disc problem. Along with that, old age, as your age progresses, the disc gets degenerated and you get this problem. And 80% of the disc problem can be treated and prevented by the physiotherapy advice, proper exercises and lifting techniques and strengthening of the muscles and stretching can prevent the disc problems. So what I believe in physiotherapy is prevention, not the cure. So prevention is always better than the cure. So we mainly focus on preventing the problem rather than treating after getting the problem. सर दूसरी बात ये अगर सर दूसरी बात ये जैसे कि अगर आप मेडिसिन में अंदर ऑफ करनी है क्या कंटिन्यू चलती रहेगी थेरेपी के साथ साथ? Sir, medicines can be given but not for the pain, because you get most of the pains can be treated with physiotherapy without side effects. So if you give any medicine for pain, it will work for 8 hours and it has a lot of side effects. But the advantage with physiotherapy modalities which will be given for pain relief has no side effects. So medicines can be given for acute conditions, not for the chronic conditions. Prefix is not given by any university or any government, sir. So if you do MBBS also, they give Mr. or Miss. This will be called by your patients. So when you have independent status, independent practice, meaning that you can assess your patient, you can diagnose the condition and you can treat independently, obviously you will be called as a doctor. So he is a physiotherapy doctor. What is the scope of the physiotherapy? Physiotherapy has got a lot of scope in the healthcare system, sir. We are the best healthcare providers in the community now. Because we start from, pediatric to geriatric. Before you born and in the womb, the baby is in the womb, we will start physiotherapy to the mother until you die. So all the areas there is a physiotherapy scope. So physiotherapist not only treating the problem, and we believe in prevention of many injuries in the society.
मेरा नाम डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय है। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की विमेन विंग की अध्यक्ष हूँ और नेशनल ट्रेजरर हूँ। मैम आज की जो कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था, क्या कारण था जो आपने इतना बड़ा हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से आपने बुला रखे हैं लोगों को? जी, ये महिला विंग की सेकंड नेशनल विमेन सेल कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश विदेश से 2000 से ऊपर डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और महिला विंग पूरे जोर शोर से 25 राज्यों से आज यहाँ आई है। इसका मेजरली थीम रहा है एम्पावर एंड हील डिसेबिलिटी, इनको इंक्लूजन। सरकार भी कहती है कि 2047 में हमारा देश युवा नहीं रहेगा तो एक वृद्ध देश हो जाएगा। उसके मैनेजमेंट के लिए, एल्डरली केयर के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, अर्गोनॉमिक्स के लिए, लोगों को सही पोस्चर और सही तकनीक सिखाने के लिए हमने ये अधिवेशन किया है। मैम अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि फिजियोथेरेपी से होती क्या है, उसकी पूरी परिभाषा क्या है, तो आप किस तरह अवेयरनेस देंगे हमारे हिंदुस्तान के वासियों को? फिजियोथेरेपी एक साइंस है, मूवमेंट साइंस। देखिए, जन्म से लेके मरण तक अगर कोई किसी भी चीज़ को मूवमेंट करा सकता है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक से चल नहीं पाते, उनके माइलस्टोन डिलेड होते हैं, उनको लेके, और जो बुज़ुर्गों में स्ट्रोक, पैरालिसिस, जॉइंट पेन, न्यूरो प्रॉब्लम्स, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, वो सब का एक ही इलाज है फिजियोथेरेपी, जो बिना दवा के, बिना किसी भी इंजेक्शन के इलाज कर सकता है। सो बिना दर्द दिए दर्द का इलाज करते हैं। मैम अभी तक जो आपके जो पेशेंट, यानी कि आपने उदाहरण दीजिए कितने लोगों का अभी तक समस्या समाधान हुआ, कितने पेशेंट होगा? क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान के अंदर मेडिसन या जेनरिक हो या वैसी बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? एक बार क्वेश्चन बोलिए, एक बार क्वेश्चन। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे आपने बताया कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया, तो कितने लोगों ने लाभ उठाया इससे और कितनी जल्दी? देखिए, मैं जैसे 24 साल से कार्यरत हूँ। पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 2.5 लाख पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग 1 घंटा एक पेशेंट को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं। हम लोग उस पूरी की पूरी चेन की ना बैकबोन है। तो जैसे मैंने कहा 2.5 लाख से ज़्यादा, तो साल में कितने पेशेंट्स देखते होंगे, और इसीलिए हम सरकार को भी इस अधिवेशन के द्वारा बताना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट को उतनी ही महत्ता मिले सोसाइटी में। जैसे आपने कहा लोग अनअवेयर हैं, आई थिंक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स भी बोलने चाहिए, क्योंकि वो सब इलाज के लिए हमारे पास ही आते हैं। सर जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे जो सेंटर बने हुए हैं उनकी काफ़ी कॉस्ट होती है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आप इसका फ्री कॉस्ट करेंगे? जब भारत सरकार से आपका टाइप होगा तो हो सकता है, मुझे लग रहा है फ्री होगा क्या इसका? जी हाँ, बिल्कुल। ये इस बार हमारा ये प्रपोजल भी है आईएपी वुमेन सेल के द्वारा गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के साथ कोलैबोरेट करना, सीएसआर फंडिंग के लिए भी बात करना, क्योंकि हम चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स, आप यहाँ देखिए 181 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो बहुत रूरल, बहुत दूर के उसमें हैं, जहाँ उतनी नहीं अवेयरनेस, वहाँ तक हम पहुँचें और वहाँ ऐसे क्लिनिक्स खोलें, रेलवे स्टेशंस पे, प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे खोलें। तो ये मैं एज अध्यक्ष, ये हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है वो मेडिकल लाइन के अंदर है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अर्निंग अच्छी तो होनी ही चाहिए, सभी की होनी चाहिए। मेडिकल लाइन की अर्निंग नहीं, मैंने कहा हम दवा के बिना इलाज कर रहे हैं, तो हमारी जो अर्निंग है वो हमारी मेहनत है, जो हम पेशेंट को कोशिश करते हैं कि ये सोसाइटी को हम बीमार पड़ने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हम प्रिवेंट करते हैं लोगों को परेशानियों से, तो इकोनॉमिक तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। लास्ट सवाल और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो आपके पेशेंट जो सुन रहे हैं? हम पेशेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि अच्छा खाएं, मेंटली बहुत ज़रूरत है पोस्ट कोविड आप लोगों को स्वस्थ रहने की, तो फिजियोथेरेपिस्ट बायो साइको सोशल हर प्रकार से इलाज करता है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये अधिवेशन है जिसमें हम लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर सुने हमारे यूट्यूब चैनल्स। डॉक्टर संजीव झा, नेशनल प्रेसिडेंट आईएपी। ये जो आज की ये जो 2 दिवसीय हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम है फिजियो मंथन, और आईएपी वुमेन सेल जो हमारी महिला विंग है वो ये प्रोग्राम कर रही है। आज के दुनिया में आज की लाइफस्टाइल हमारी जैसी हो गई है, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसके बढ़ने की वजह से अगर हमें फिट रहना है तो फिजियोथेरेपिस्ट को हमें समाज में हर जगह उनका योगदान चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे नए नए रिसर्चेज, एक्सरसाइज से, जैसे सुश्रुत साहब ने हमारी पुरानी जो वैदिक सभ्यता है उस समय से, वेद के समय से फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है।
तो अब इसको हम और अच्छा कैसे करेंगे और रिसर्च कैसे करेंगे और हम समाज को दर्द विहीन कैसे रख सकते हैं, उसके लिए ये पूरी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस। आज के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डिस्क का है बहुत बड़ा समस्या है, तो फिजियोथेरेपिस्ट में इसका क्या बेनिफिट है अगर आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं डिस्क की बहुत बड़ी समस्या है, उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी डिस्क की समस्या 99% होगी नहीं। होता ये है कि हम क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो पुरानी दिनचर्या थी, जो हमारे पुराने टाइम में था, लोग नीचे बैठते थे, लोगों का चलना फिरना होता था, जो अब सब बंद हो गया है। लोग लाइफस्टाइल बदल गई है, उसकी वजह से मसल्स मांसपेशियां वीक हो रही हैं कमर की, और डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का योगदान हमारे समाज को फिट करके पहले तो प्रॉब्लम को कम करें, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तो हमारी जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आई हुई हैं, नई मॉडर्न मशीनें हैं, और मैनुअल टेक्निक्स हैं जिससे हम ऑसिलेशन से ठीक करते हैं, मूवमेंट से ठीक करते हैं। तो फिजियोथेरेपी इसका एक बहुत बड़ा अचूक रामबाण है। तो फिर ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट में अगर बंदा लेता है तो मेडिसिन इसमें कंट्रोल चलती है क्या, बिल्कुल ऑफ जाता है इसके अंदर? देखिए, अगर इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है, इसको मैकेनिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई कोविड नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को मजबूत रखें। मजबूत रखेंगे तो डिस्क की प्रॉब्लम होगी नहीं। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो वो डिस्क को सपोर्ट करती हैं, तो वो होंगी नहीं। सर, इसके जो आप जो बता रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो इसका लाभ जो है कितना समय तक मिल जाता है, यानी कि इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा ज़िंदगी भर, क्या शॉर्ट टाइम के लिए होता है? नहीं, देखिए, लाभ तो आपका एक दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। दर्द ख़त्म करने के बाद एक संक्षिप्त छोटी एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में आप शामिल करिए। 5 से 10 मिनट 15 मिनट की भी आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो आपको समस्याएं बार बार नहीं होती। चलिए, जो आपको पेशेंट जो देख रहे हैं या सुनना है, तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए और थेरेपी के तरीके? देखिए, जो सबसे सिंपल संदेश ये है कि आप अपने दिनचर्या में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज करें और कम से कम 20 मिनट के लिए करें। इतना भी आप करते हैं तो आपको बहुत सारी जो समस्याएं हैं मांसपेशियों की, जोड़ों की, वो नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। My name is Pooja Agarwal. तो आज के सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? It's a very good opportunity to listen other panelists, and I'm able to share my views to all the physiotherapists. And physiotherapy is like very much important for a person, and very much important for a sports person. And for para sports person, it's a like without physiotherapist, I think no sports person or no para sports person can move ahead or to success in their sports life. मैम, आप स्पोर्ट्स से हैं, क्या लगता है आपको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत, क्या मेडिसिन की जरूरत ज़्यादा है? Obviously, as I said, any sports person needs physiotherapist, and no sports person move to his or her success without physiotherapist. थैंक यू मैम। Thank you. मैं पूजा पांडे त्रिपाठी हूँ, आरोग्या फिजियोथेरेपी की फाउंडर हूँ, बैंगलोर से आई हूँ। तो मैम, आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसका क्या मकसद है और क्या आप बताना चाहते हैं? इसका मकसद ये है कि सारे फिजियोथेरेपिस्ट को साथ में लाएं, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के बारे में लोगों को जागरूक करें। ऑल्सो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको बताएं कि अभी नई टेक्निक्स, नई चीज़ें क्या आ रही हैं। बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें नई चीज़ों के बारे में बताया भी जा रहा है। बहुत सारे डिस्कशन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोचती हूँ या कोई और सोचता है बहुत अलग है, तो दूसरे के विचार सोचे जिसको हम एक्चुअली शायद अपनी प्रैक्टिस में लागू कर सके। तो नॉट ओनली प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, फिजियोथेरेपिस्ट को नॉलेज को भी बढ़ाए और सबको साथ में लेके सब साथ में बढ़े। क्या लगता है मैम, आज के जो हमारा जो खान पान है, हाँ। तो उसको कैसे देखते हैं आप? आजकल के 2 लोग हैं, एक जो बहुत ही जागरूक हो रखे हैं और जो सुबह सुबह उठेंगे और पानी पिएंगे और जिम जाएंगे, और दूसरे जो उठना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके के लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटा एक्सरसाइज करें, पर बहुत ज़रूरी है कि 20-25 मिनट जितना भी दिन में आपके पास टाइम है, कुछ तो हिले। क्योंकि आजकल बोलते हैं कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, तो बैठे रहने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है, मेंटली फ़िट नहीं है, तो आप कहीं भी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे।
तो आपको अगर अपने प्रोफेशन में अच्छा करना है या कहीं भी अच्छा करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट तो होना पड़ेगा। उसके लिए आपको खान पान अपना सही रखना पड़ेगा, शाम को जल्दी खाइए, कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, जो आप जो बता रहे हैं, जो नई नई टेक्निक आ रही है, उसके ऊपर जो बंदा जो अब जब आपके पेशेंट आएंगे तो उसको जो रिलीफ है कितना समय में मिलता है, या हैंड टू हैंड मिलेगा, क्या लंबे समय तक उसकी थेरेपी होगी? तो आजकल थेरेपीज़ बहुत एडवांस हो गए हैं, पर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आप पे पेशेंट कौन सा आया है। क्या एक्यूट पेशेंट है, एक्यूट पेशेंट को हम जल्दी रिलीफ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी आया है हमारे पास। क्रॉनिक पेशेंट अभी 3 साल से पेन हो रहा है, आज की डेट में वो आ रहा है, तो उसको रिलीफ मिलने में भी टाइम मिलेगा। और ऑर्थो और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में थोड़ा आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जल्दी मिलता है। न्यूरो कंडीशन में आपको पेशेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन कैसे, अगर एक स्ट्रोक केस है और मैं एक्सपेक्ट करूं कि 5 दिन में चलने लग जाएगा तो वो गलत होगा। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से अब शायद रिजल्ट्स थोड़ा और बेहतर और जल्दी आने लग गए हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, थेरेपी के साथ साथ आज के टाइम पे जो मेडिसिन है वो भी कंटिन्यू चलेंगी, क्या उसको आप कट कर देंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। एक्चुअली आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है, 10 साल से मैंने कोई मेडिसिन खाई नहीं है। हाँ, तो एक डिकेड हो गया है मुझे कोई मेडिसिन खाए हुए। मैं अपने पेशेंट्स को भी अवेयर करती हूँ कि एवरी 6 मंथ्स में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बेसिक टेस्ट करवाएं और देखें कि आपकी बॉडी में किस किस चीज़ों की कमी है। विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, और उसको पूरा करें। हाँ, पर इमरजेंसी में या कभी कोई हालात ऐसे हो गए कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा है, आपको कोविड हो रखा है, आप मेडिसिन के लिए तब मना नहीं कर सकते। तो दोनों का अपना है, पर जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप फिट रहेंगे, आपको मेडिसिन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। वुमेन सेल का एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, और आज और थोड़े अच्छे लेवल पे हो रहा है। और जहां आपको डॉक्टर संजीव झा और डॉक्टर रुचि वर्षनी मिलेंगे, वहां आपको लगेगा कि हाँ, फिजियोथेरेपी किस लेवल से कहां पे आ चुका है। और आज आप देखोगे हर कोई मिनिस्टर, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, हर कोई डॉक्टर, वेदर इट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, हर किसी को एक फिजियो की ज़रूरत पड़ रही है। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि आज बच्चा जब पेट में होता है, हम जब प्रीनेटल एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट्स को, और जब तक वो ग्रेवयार्ड तक पहुंचता है तब तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और ये फिजियोथेरेपी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो अभी चल रहे हैं, आप देखेंगे हर हॉस्पिटल में, हर जगह पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग 60 से अबव हैं उनके लिए, जैसे मैं पिछले 26 साल से मुंबई में हूँ, IPL मुंबई इंडियंस के साथ था मैं, महिंद्रा फुटबॉल टीम के साथ था, मुंबई रणजी ट्रॉफी, दिल्ली रणजी ट्रॉफी, स्पोर्ट्स फिजियो में था मैं। तो हमने एक छोटा सा डिसीजन ले लिया हमारे फिजियोथेरेपी ग्रुप ने कि हम लोग जो सीनियर सिटीजन, उनका एक फ्री कंसल्टेशन रखेंगे हर हफ्ते में 1 दिन, ताकि उनको अवेयर किया जाए। बिकॉज़ हमारी कंट्री में जब एक रिटायर हो जाता है आदमी, फिर उसके आधे लोग का पेंशन रहता है, आधे लोग का नहीं रहता है, तो वो दिक्कत होती है उनको हमारे पास पहुंचने में। वो सोचते हैं कि इसमें कंसल्टेशन पे करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करें, जो हमारे सीनियर फिजियोज़ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन तक पहुँचें और उनको एक अवेयरनेस दे दें कि आपके जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम है, ये आप घर पे भी छोटी एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बढ़ने ना दें। और उनके थ्रू वाया दैट मीडिया वी आर ट्राइंग टू रीच पूरे फैमिली को, जो उनके घर में बच्चा भी होता है, उनको भी दादाजी समझाने लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दो। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें डॉक्टर संजीव झा, डॉक्टर रुचि वर्षनी, डॉक्टर अली ईरानी, ये लोग सब मिलके, आज आप देखते हैं वर्ल्ड का प्रेसिडेंट यहाँ आ गया अमेरिका से, फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर माइक, जो यहाँ आए। और आज सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी, बोला यार मुझे अजीब सी एक खुशी मिलती है ऐसे इतने फिजियोज़ को साथ में देख के, और कैसे आप लोग काम करते हो यहाँ पे। मतलब उनका बोलना है कि उनकी जो जगह है उसमें 60,000 लोग रहते हैं। अब 60,000 लोगों में कितनी फिजियोथेरेपी करोगे आप? और मैं जिस जगह में रहता हूँ उसमें 60,000 सुबह एक ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, जो लोकल ट्रेन होती है। तो आप सोच सकते हैं कितने फिजियोज़ की ज़रूरत है हर किसी फील्ड में। तो आप लोगों की मदद से, आप लोग जब ये मीडिया मैसेज भेजते हो लोगों की ओर, तो हमको भी अच्छा लगता है, और ये मैसेज जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, कि हम लोग किस सतह पे फिजियोथेरेपी को लाएं। ये सीनियर सिटीजन का
जी ये कहाँ कर रहे हैं? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर सिटी में हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। जो जूनियर फिजियोज हैं उनके क्लिनिक भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है चलाना, लेकिन हम लोग कोशिश करें जो सीनियर फिजियोज जो 15-20 साल से काम करें। मेरा जैसे है, मैं पिछले 26 साल से बॉम्बे में कर रहा हूँ, तो आज तक मैंने कभी सीनियर सिटीजन से कंसल्टेशन लिया नहीं, फर्स्ट डे से आज तक, बिकॉज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही क्रिकेट टीम्स के साथ, बाकी टीम के साथ। तो मेरे पास एक दिन ऐसा भी रहता था जिसमें मैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास ऑरेंज राशन कार्ड होता था, और सीनियर सिटीजन जो होते थे उनका, और मेरे जैसे काफ़ी सीनियर फिजियोज हैं जो फ्री ऑफ चार्ज ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं। तो इससे क्या बदलाव आया सीनियर सिटीजन को? क्या बदलाव फिजियोथेरेपी से क्या होगा? उससे ये बदलाव आया कि जो आर्थराइटिक चेंजेस आती है एज के साथ, उनको सर्जरी से हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, क्योंकि सर्जरी का एक खर्चा रहता है, उसके बाद फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक भी होता है। लेकिन जहाँ सीवियर होता है, जहाँ हमको मालूम होता है कि एक फिजियो का लिमिटेशन है, इस लिमिट तक हम लोग कर सकते हैं, तो उस लिमिट तक हम उनको हेल्प करते हैं, तो आगे चल को उनके प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ सर्जरी ज़रूरी है, वहाँ हम उनको रेफ़र करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, ताकि आगे चल के उनकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए। अभी डिमांड और सप्लाई में कितना गैप समझ रहे हैं? किस पे डिमांड हो? फिजियोथेरेपी का डिमांड तो बहुत है। आज हर किसी को, आपने सुना होगा कि सबसे अच्छी बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच दी, आई थिंक इट वाज इन केरला में था शायद, इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपी का कॉन्फ्रेंस था, जहां उन्होंने बोला पहले हर घर में फैमिली फिजिशियन होता था, अब हर घर में एक फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट आ गया है। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात तो हो नहीं सकती है। So hello everyone, I'm Dr. Shruti from Bangalore, working in Sagar Hospital, Bangalore, and I'm very honored and privileged to be here at IAP Women's Cell. This is a very great initiative by Dr. Ruchi ma'am. I really appreciate for you ma'am for this, and this will really put a great impact in physiotherapy fraternity now and in future. So as I told, by profession I'm a physiotherapist, and also by passion I'm a professional model. So as you know that the modeling requires a lot of fitness. So I feel that my profession has helped me a lot in getting into more of fitness and maintaining the very healthy sedentary lifestyle. As you know that in a fast-paced world, the sedentary lifestyle and the chronic diseases have become very common. So our physiotherapy plays a vital role in modern lifestyle. Thank you. I am Professor Dr. Ali Irani from Nanavati Max Hospital, Mumbai. मैं इंडियन एसोसिएशन फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का इंटरनेशनल अफेयर का चेयरमैन हूँ, जो इंडिया को छोड़ के बाकी देशों का प्रॉब्लम संभालते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का, उसका इंचार्ज हूँ। उससे पहला फिजियोथेरेपी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और बड़ी खुशी हुई कि आईएपी ने वुमेन सेल बनाया, और ये दूसरा साल है जो वुमेन सेल ने इतना अच्छा बढ़िया कॉन्फ्रेंस रखा है। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कहते हैं, ये मेन वो है, और काफ़ी मेहनत हुआ है यहाँ पे, और पूरे भारत से सब वुमेन सेल, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और अपना अपना जो लगे प्रॉब्लम से रखे हैं, और आईएपी जो है मेन मदर बॉडी, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वुमेन के बारे में कभी भी एक ही बात कहता हूँ कि हमें ये दुनिया से जाने के कितने तरीके हैं। एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल होता है, कितना तरीके से जाते हैं हम। एयर एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस दुनिया में आने के लिए एक ही रास्ता है, वो स्त्री। तो वुमेन का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम दुनिया में बिना उनका आ ही नहीं सकते, और मुझे खुशी है कि वुमेन सेल इतना बढ़िया काम कर रहा है, और शायद हर साल हम इसी तरीके से दिल्ली आते रहेंगे फिजियोथेरेपी वुमेन सेल के कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एन्जॉय दिल्ली। Myself, Emeritus Professor K. Paulson from Karnataka. So I'm the first Emeritus Professor from the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and I have done my post-graduation from University of South Australia, Adelaide, and we have been teaching manual therapy for past 24 years, and we are very happy the standard of education and as well as the standard of the physiotherapy practice have been tremendously changed, what I have seen as a bachelor degree and as well as now.
So it's very happy to be here on this second international conference of IAP Women's Cell, where our chairman of NCAHP and our chairman for Karnataka, Dr. Iftikhar Ali, all come from different parts of the world, and even the World Confederation of Physiotherapy president has come. So it's a big accumulation of knowledge, and as well as we come to know what happening today. And we are very happy to meet young budding physios, and as well as it's a great place for networking with different parts of country. I wish all the best for these conferences, and I'm very happy to be giving my panel discussion about ergonomics and physiotherapy. So today what happened, most of the patients comes with back pain or neck pain, and they are not able to come to the daily therapy because they have a lot of limitation. So we tell them what to do, what not to do, and we can make them to prevent the disease, and as well as we can maintain what they have now. So physiotherapy is not only a condition or a therapy which treats, it is also a prevention one. So we are very happy to be a physio, and thank you very much. I'm हिंदी में बोलूँ कि I'm Dr. Yagna Shukla. I'm a chairperson of National Commission for Allied and Healthcare Professions. That is a regulatory body which is there, and I have taken charge in January 2024 as the first chairperson of this commission. क्या कहना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में? This IAP Women's Cell, who have organized this conference, and the theme of this conference is basically on geriatrics, that is healthy aging, and nobody can stop aging, but definitely physiotherapist can give good quality of life as far as old age is concerned. Because old age mein there are so many issues that are being faced by many, like arthritis, osteoporosis, that cognitive issue. So looking in mind about this common issues which are being faced due to age, here in this conference there is going to be a lot of exchange of knowledge, expertise on this issue. How can we help in making people, or how can, it is not important how long you live, but it is very important about the quality of life, because lying in a bed for 10 years doesn't make any difference if you have a good active life of 5 years. So physiotherapist helps those in getting good active quality life. So the theme of this conference is very much, I can say that it is so important, and it is going to give a good guidance to those who have issues as far as aging related are concerned. Thank you. Myself, Dr. K.M. Annamalai, Secretary, Indian Association of Physiotherapists, and today we are in a great day, and I have a good opportunity to speak. सर आज की जो कॉन्फ्रेंस था, क्या मकसद था इसका, क्या? आज हम लोग फिजियो मंथन ऐसा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आईएपी का. इसमें टू कॉम्बिनेशन, one is women's empowerment, and the other one is we are working on our national integration on physiotherapy and creating awareness around the country and around the nook and corner of the India. So ये हमारा एम वही है, and हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी प्रेसिडेंट आया है, and it is गर्व की बात है इंडिया में अभी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी प्रेसिडेंट आया है हमारा प्रोग्राम में. And this will not only India में पहुंचाएगा नहीं है, throughout world this message will go strongly with the vision of our honorable prime minister. The बेटी के लिए कितना बढ़ावा देता है साहब सबको पता है, तो उसके ऊपर हमारा this empowerment of women's conference in physiotherapy is a proud moment for not only our country, it is internationally also. We are the first we are doing, so the president is also saying that we are inspiring by seeing you.